السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ بڑی مزاحیہ اور بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہیں۔ انور مقصود صاحب نے گزشتہ روز کچھ ٹائم پہلے کچھ کہا کہ میں اوپن نہیں ہونا چاہتا، اگر میں اوپن ہوں گا تو بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، پر پھر بھی انور مقصود صاحب نے جو یہ باتیں کہیں بڑی مزیدار، بہت اچھی، عمران خان صاحب کے بارے میں اور شاہ رخ خان صاحب پٹھان فلم کے بارے میں جو انہوں نے کمپیئرنگ کہی، وہ بھی بڑی زبردست اور بہت فنی اور بہت اچھی بات بھی کہی۔ پٹھان کے بارے میں بھی، نمک حلال کے بارے میں بھی، نمک حرام کے بارے میں بھی۔ چلیں چل کے یہ آگے ویڈیو چل کے دیکھتے ہیں، اسی میں صحیح معنی میں پتہ چلنا ہے۔ اوکے۔ انور مقصود نے چند دن پہلے کہا تھا کہ مجھے ننگا ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے 85 سال کی عمر میں، لیکن جو اب انہوں نے تقریر کر دی ہے، دعا کیجئے کہ نہ تو ان پر اعظم سواتی کی طرح 45 FIR کٹے، نہ وہ ننگے ہوں، نہ ان کو مارا جائے، کیونکہ انہوں نے جو تقریر کر دی آپ کو سنوانے جا رہے ہیں، یہ اب تک کی بہترین تقریروں میں سے ایک تقریر ہے، کیونکہ انہوں نے کلیئرلی کھل کر فوج، سیاستدان، تمام لوگوں کے خلاف بڑے ہی کمال انداز میں گفتگو کی، اور جو عمران خان کی شاہ رخ کی پٹھان مووی کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا، اور پھر یہاں پر بتایا کہ پاکستان دنیا میں نمک پیدا کرنے والا نمبر 2 ملک ہے، لیکن نمک حرام پیدا کرنے والا نمبر 1 ہے۔ کیا کچھ انور مقصود نے کہا، یہ سننے والی ان کی تقریر ہے۔ آپ کو مزہ آئے گا کہ پاکستان میں ایسے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں جو اس طرح کی طنز و مذاق کریں۔ دعا کریں ان کے خلاف کوئی FIR نہ کٹے۔ آپ بھی سنائیں ہندوستان میں انشاءاللہ۔ پٹھان نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تاریخی کامیابی، پاکستان میں پٹھان پر FIR کا ٹولہ۔ کیا بات ہے یہ، سنا آپ لوگوں نے؟ پاکستان میں پٹھان پر FIR کٹوائی جا رہی ہے، اور موجودہ حالات میں پاکستانی پٹھان کی کامیابی نظر نہیں آتی، مگر سنا ہے آنے والے الیکشن میں پاکستانی پٹھان کی ایڈوانس بکنگ ہندوستانی پٹھان سے زیادہ ہے۔ کیا بات ہے، انور مقصود صاحب کی بھی باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ویور جی۔ میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے ویور؟ لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ سیلاب سے کہیں زیادہ ہم لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ IMF سے بات چیت ختم ہو گئی، ان لوگوں نے کشکول کا منہ 50 گنا بڑھا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب کیا کریں؟ امیر پریشان ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو روٹی مہنگی ہو گئی، یہ بات ہوئی انور مقصود صاحب نے۔ گئی۔ جو حال اس وقت پاکستان کے ہر شہر کا ہے، آگرے کا بھی یہی حال تھا جب نذیر اگرآبادی نے لکھا تھا، جب ملی روٹی ہمیں سب نور حق روشن ہوئے، رات دن شمس و قمر شام و شفق روشن ہوئے، اپنے بیگانوں کے تھے لازم جو حق روشن ہوئے، دو چپاتی کے ورق میں سب ورق روشن ہوئے۔ واہ، ایک رکابی میں ہمیں 14 طبق روشن ہوئے۔ ایک جگہ اور کہا ہے، پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کے؟ وہ سن کے بولا، بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ زبردست۔ 75 سالوں سے جو بھی حکومت آئی، ہم نے صبر سے اس کا مقابلہ کیا۔
क्योंकि हमें ये कौल याद है कि शैतान भी भेस बदल कर काम करने में हमेशा कामयाब रहता है। हम तो सिर्फ खामोश बैठे तमाशा देखते रहते हैं, उस निशाने राह से दूर जिसकी आदत हो गई है, उस नुकसान का अंदाज़ा भी लगाने की हिम्मत नहीं रही जो हमको पहुंचने वाला है। मैं पिछले 3 दिनों से लाहौर के सबसे पुराने होटल प्लेटीज़ में ठहरा हुआ हूँ। 1880 में तामीर हुआ था। मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजमा होंगी। आज सुबह मैंने उनसे कहा, आप जहमत न करें, आप कहाँ रहती हैं, मैं आकर आपके कमरे को साफ करूँगा। खामोश हो गई, फिर कहने लगी, अनवर साहब, बाला घर पर ही रहता है। शायद मेरा खुलूस वो नहीं समझी। मैंने पूछा कहाँ की हो, तो कहने लगी गुजरात। मैंने कहा मुस्लिम लीग काफ की तरफ हो? बोली मुस्लिम लीगों ने कायदे की ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ काफ गाफ बच गए हैं। मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ हूँ। पढ़ी लिखी हो? मियाँ जी पढ़ी लिखी होती तो बेरोज़गार होती। यहाँ तो तनख्वाह मिल जाती है। बहुत से लोग मेरे कमरे में फूलों के गुलदस्ते छोड़ गए थे। मैंने कहा आप सारे फूल ले जाएं। बोली बाला ज़िंदगी अज़ाब कर देगा, ये फूल किसने दिए हैं, यहीं रहने दे, ये कह के चली गई। लाहौर में फूलों के मौसम की आमद है, मगर यूँ लगता है लाहौर के दिल वाले इस दफ़ा फूलों से कहीं ज़्यादा इलेक्शन के खिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है, ना सरकार, ना अदालत, ना खुदा जानता है। सिर्फ फौज जानती है, मगर वो बता कर नहीं दे रही है। हालात की वजह से इलेक्शन के साथ भी कमीशन लगा दिया गया है और हम सब जानते हैं यहाँ बगैर कमीशन के कोई काम नहीं करता। कल्चर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। मुसव्वरी, मूसीकी और तामीर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। हालात हाजरा पर बात हो रही है, हॉल खाली है। बड़े ज़बरदस्त बातें करते हैं व्यूअर्स। हुए थे जिनके रिश्तेदार मौजूदा हुकूमत में हैं। 4-5 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक फौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उसकी इज़्ज़त करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। मगर हुकूमत जमहूरी है। हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वज़ीर आज़म से लेकर सारे वज़ीर बच्चा जमहूरा बन जाते हैं। डुगडुगी हिलाकर कोई उनसे कहता है ओए बच्चा जमहूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं। ओए बच्चा जमहूरा आप चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमहूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई। डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है।
एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। कसूर सिविलियन का है, वो कुछ काम अच्छा काम करके ही नहीं देते। हर हुकूमत में जितना अपना ख्याल रखा उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाल्लाह कभी नहीं आता। 75 बरसों में फ़ौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। 35 बरस तो यूँ ही कह गया, 75 बरसों में तकरीबन 74 बरस फ़ौज ने हम पर हुकूमत की है, आज भी कर रही है। इसमें फ़ौज से कहीं ज़्यादा हमारा कसूर है। फ़ौज हमारी ज़रूरत है, मगर जमहूरी दौर में न जाने क्यों हम फ़ौज की ज़रूरत बन जाते हैं। जो सिपाही हुक्म के तहत कत्ल करता है या जो सरकारी मुलाजिम कवानीन की तकमील करवाने में किसी को अजियत पहुंचाता है, वो ख़ुद को ज़िम्मेदारी से आज़ाद समझता है कि हुक्म के नौकर है। वो कहता है कानून हमने तो नहीं बनाया। वो ये भूल जाता है कि हर अमल एक अमल करने वाले की तरफ लौटता है और उनका अमल भी उन्हीं की तरफ लौटेगा। 75 बरसों से जो यहाँ गरीब हैं वो आज भी गरीब हैं। दादा गरीब, बाप गरीब, बेटा गरीब, पोता गरीब। न पैसा, न तालीम, न घर, न कोई मुस्तकबिल। इनका कोई हक नहीं। सिर्फ एक हक है, अगर गलती से कहीं इलेक्शन हो जाए तो इन पर वोट डालना फर्ज है। 75 बरसों से यहाँ जो तख्त पर बैठे हुए हैं, दादा तख्त पर, बाप तख्त पर, बेटा तख्त पर, बेटी तख्त पर, फिर पोता तख्त पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतरीन लोग यकीन से महरूम हैं, जबकि बदतरीन लोग पुरजोश वारफ्तगी से भरपूर हैं। अहमद शाह साहब ने मुझे यहाँ संजीदा गुफ्तगू करने के लिए नहीं बुलाया था, मगर दिल न हंसने को चाह रहा है न हंसाने को। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें करी हैं अनवर मकसूद साहब ने। अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वही बात है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के सूरत से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें और बहुत लुत्फ़ भी आया सुन के, मज़ा भी आया और अफसोस भी हुआ कि इतना सब होने के बावजूद भी लोग अक्ल और शऊर इस दुनिया में पता नहीं किन उसमें घूम रहे हैं। कहाँ जो माइंड चल रहा है इन लोगों का, क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद कर दे। दुआ है कि वही वक्त आ जाए, वही दौर आ जाए, सस्ताई हो जाए, घरों में वही खुशियाँ आ जाएं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। इंशाल्लाह फिर एक वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।